CBSE Mathematics Class 11th Chapter 5 Complex Number and Quadratic Equation। अब देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ax² + bx + c = 0। अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। व्हेन डिस्क्रिमिनेंट दैट इज b² - 4ac is greater than or equal to 0। इस दो सिचुएशन में पढ़े हैं, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 में पढ़े हैं वैल्यू निकालने। लेकिन उस समय हम लोग छोड़ देते थे व्हेन डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0 मीन्स डिस्क्रिमिनेंट -1 होगा, तब हम वैल्यू कैसे वर्कआउट करें। फॉर एग्जांपल मान लीजिए डिस्क्रिमिनेंट -7 आ गया, तो -7 का स्क्वायर रूट हम नहीं निकाल रहे थे। अभी उसके लिए है, जैसे मान लीजिए x² + 1 है इक्वल टू 0, तो यहाँ पर क्या है x² = -1। -1 डज नॉट बिलोंग्स टू द रियल नंबर, देयरफॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ complex number is required here। You see the iota square, there is an imaginary number, if you square it you will get -1। there is an imaginary number and if you square it you will get -1, so it is always represented by I and it is called iota, imaginary। and Swiss mathematician Euler, he has started this, and in order to give the respect, iota is given the name to it। Now the complex number is written in the form a plus iota b। Here a is independent of iota, so therefore it is called real part। It is called real part। In the second part, that is iota b, that is called imaginary part। and the combined these two, a plus iota b is the standard form of the complex number। So let us remember something important। Integral power of iota, if iota raised to power 4k where k belongs to integer, at that time it will be equal to 1। iota is equal to iota raised to power 4k plus 1, iota raised to power 4k plus 1, it will be equal to iota raised to power 4k plus 2, that will be equal to -1। iota raised to power 4k plus 3, that will be equal to -1 minus iota। So here we see that if the यदि iota का पावर ऑड पावर है then you will get imaginary number। आप देखिए यहाँ पर इसका पावर +1 कर दिया है, तो आपको क्या मिला है, इमेजिनरी आयोटा। अब यहाँ पर ये भी इवन है, यहाँ पर आयोटा आ गया माइनस आयोटा। देखिए ऑड पावर इमेजिनरी नंबर, इवन पावर रियल नंबर। Now come to display the conjugate of complex number। What is conjugate of complex number? That is, if you are having the x plus iota y and the conjugate of this will be equal to x minus iota y। अब देखिए इन दोनों को प्लस कीजिए तो क्या मिलेगा, x और x 2x रियल पार्ट मिलेगा और इमेजिनरी पार्ट दोनों, एक प्लस है एक माइनस है, कैंसिल हो जाएगा। सो यू विल गेट ऑन एडिशन ऑफ द कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर यू विल गेट रियल।
So, and the conjugate number is represented by bar Z. अब देखिए यहाँ पर एक रूल दिया हुआ है, conjugate of complex number. Z stand for the complex number. So the conjugate of complex number will be equal to given complex number. Means double conjugate. If additive Z plus iota Z, conjugate of Z, you will get two real part, twice of real part. If you subtract complex number minus conjugate of the complex number, you will get twice of the imaginary part. If you multiply the complex number to the conjugate complex number, then we will get x square plus y square. It will be free from iota. Here note, in the set of complex number, relation of order is not defined. Example criteria, it is difficult to decide whether the two complex number Z1 is greater than Z2 or Z1 is less than Z2. Now some properties of complex numbers. In any zero complex numbers, the real part is 0, imaginary part is 0. If complex number Z is equal to x plus iota y and that is equal to 0, it means that x is also 0 and y is 0. Because x plus iota y is equal to 0, it means the x is equal to, just transpose कर दीजिए, minus iota y. On squaring we will get x square, that will be equal to iota square into y square. Further, x square will be equal to iota square की जगह पर हमने क्या लिख दिया है, माइनस. So x square is equal to minus y square. So x square plus y square is equal to 0. Here x square and y square belongs to the positive real number. Because they are both are the squares, so the positive real number, and its sum is 0 only when both parts are 0. In case of two equal complex number, real part, if both complex numbers are equal, at that time we just equate the real part to the real part, imaginary part to the imaginary part. Example great here. Z1 means a complex number x1 plus iota y1 and Z2, that is x2 plus iota y2. These are the two complex numbers. If Z1 is equal to Z2 means the given complex number first is equal to the given complex number second. At that time the x1 will be equal to x2 and y1 will be equal to y2. अभी देखिए x1 प्लस आयोटा y1 इज इक्वल टू x2 प्लस आयोटा y2. अभी हमने इसको ट्रांसपोज कर दिया तो x1 प्लस आयोटा y1 माइनस x2 माइनस आयोटा y2 इज इक्वल टू 0. अभी देखिए हमने क्या रियल पार्ट को एक तरफ किया, x1 माइनस x2 प्लस आयोटा इन ब्रैकेट y1 माइनस y2 इक्वल टू 0. अभी हम रियल पार्ट को 0 पर सब्स्टिट्यूट करते हैं, रियल पार्ट को 0 के इक्वल x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0. इट मीन्स दैट x1 इज इक्वल टू x2. Similarly,
y1 minus y2 equal to 0. At that time y1 is equal to y2. Write rule number first. ये रूल नंबर फर्स्ट आपको देखा, यदि 0 है कॉम्प्लेक्स नंबर देन इसके रियल पार्ट भी 0 होगा और इमेजिनरी पार्ट भी 0 होगा. Now, sum and the difference of the two or more complex numbers are complex numbers. देखिए, दो या दो से अधिक कॉम्प्लेक्स नंबर का जो जोड़ होगा, प्लस करेंगे, योग करेंगे, एट दैट टाइम द कॉम्प्लेक्स नंबर ही रिजल्ट आएगा. अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी भी हमारे को कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलेगा. मल्टीप्लिकेशन ऑफ द एंड डिवीजन ऑफ द टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स गिव्स द डिस्टिंक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर. अगर मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड करते हैं दो एक कॉम्प्लेक्स नंबर को आपस में, एट दैट टाइम हमारे को एक अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा. नाउ फिफ्थ है कॉन्जुगेट्स ऑफ टू इक्वल कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर ऑल्सो इक्वल. अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है तो उनके कॉन्जुगेट नंबर्स भी आपस में इक्वल होंगे. इफ z1 इज इक्वल टू x1 प्लस आयोटा y1 and z2 is equal to x2 plus iota y2. In case z1 is equal to z2, this means that bar z1 is equal to bar z2 means the conjugate of z1 is equal to conjugate of z2. That is x1 minus iota y1 is equal to x2 minus iota y2. Now addition of the two complex number. Addition of complex numbers satisfies the following properties. First is the closure law. What is closure law? यदि दो complex number को आपस में आप प्लस करते हैं तो आपको complex number ही मिलेगा. That is known as closure law. Commutative law. यदि आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 z2 तो z1 प्लस z2 विल बी इक्वल टू z2 प्लस z1. एसोसिएटिव ला यदि तीन हो कॉम्प्लेक्स नंबर z1 z2 z3 सो z1 प्लस z2 एक ब्रैकेट में रखिए प्लस z3 लास्ट में कीजिए, या आप z1 z2 z3 में z2 और z3 को पहले प्लस कर लीजिए और फिर बाद में z1 करिए, दोनों इक्वल मिलेंगे. द एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी मीन्स कॉम्प्लेक्स नंबर में भी ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसको हम प्लस करेंगे तो वही वापस कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा. दैट इज नोन एज एडिटिव आइडेंटिटी. सो द एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी इज देयर इन कॉम्प्लेक्स नंबर. Now the next property is the existence of additive inverse. Means if z1 is there then 1 by z1, if you multiply you will get result 1. So this is known as the additive inverse. Now the identities regarding the complex numbers are with which you are fully familiar already, even though z1 minus z2 whole square will be equal to z1 square minus twice z1 into z2 plus z2 square. z1 plus z2 raised to power 3 means whole raised to power 3 is equal to z1 cube plus thrice z1 square z2 plus thrice z1 z2 square plus z2 cube. z1 plus z2 whole square is equal to z1 square plus twice z1 z2 plus z2 square. z1 minus z2 whole cube will be equal to z1 cube minus thrice z1 square z2 plus thrice z1 z2 square
minus z2 cube. Here z2 square minus z1 square minus z2, z1 square minus z2 square is equal to z1 plus z2 into z1 minus z2. Just like algebraic identities, quite similar to it. Now let us do exercise 5.1. You see, the express each of the complex numbers given in the exercises from 1 to 10 in the form of a plus iota b. इस फॉर्म में हमें कॉम्प्लेक्स नंबर दिखाना है. देखिए क्वेश्चन क्या है, 5 आयोटा इंटू -3/5 आयोटा. अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए. सो -5 इंटू 3/5, 5 कैंसिल हो जाएगा. आयोटा का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा. आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, -1. सो इट विल बी इक्वल टू -3 आयोटा स्क्वायर, -3 आयोटा स्क्वायर. अब जैसे ही आपने आयोटा स्क्वायर को रिप्लेस किया तो क्या किया हमने, -1 रख दिया. देखिए यहाँ पर -3 आयोटा स्क्वायर था, आयोटा स्क्वायर की जगह पर हमने क्या लिखा, -1. सो -3 इंटू -1 that will be equal to 3, and this 3 can be represented as 3 plus iota 0. Now come to the question number 2. Iota raised to power 9 plus iota raised to power 19, that is iota raised to power 9 can be expressed in the form of 4 into 2. 4 into 2 means हमें मालूम है iota raised to power 4 or multiple of 4 will be equal to 1. So iota raised to power 4 into 2 plus 1. देखिए सेकेंड पार्ट में क्या किया मैंने, आयोटा रेस्ट पावर 4 इंटू 4 प्लस 3 इन प्लेस ऑफ आयोटा रेस्ट पावर 19 को मैंने ऐसे एक्सप्रेस किया. अब इसकी वैल्यू आ जाएगी, देखिए +1 है तो आयोटा आ गया, यहाँ पर +3 है तो माइनस आयोटा आ गया. तो अब इसको हम एक्सप्रेस करेंगे, इक्वल टू 0 है तो हम क्या करेंगे, देखिए आयोटा माइनस आयोटा आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर दिया. आयोटा एक प्लस का है एक माइनस का है तो रिजल्ट क्या मिला, 0. सो 0 प्लस आयोटा 0 मीन्स रियल पार्ट भी 0 है, इमेजिनरी पार्ट भी 0 है. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3. आयोटा रेज्ड टू पावर -39 that can be expressed in the form of iota raised to power, देखिए माइनस को मैंने ब्रैकेट के बाहर रखा, 4 into 9. 4 into 9 मीन्स 36 plus 3. अब 3 क्या होता है, अब देखिए यहाँ पर तो ये तो +1 हो जाएगा और इस माइनस को हमने प्लस करने के लिए हमने क्या किया, नीचे ला दिया इसको, तो ये प्लस भी हो गया. और 4 into 9 plus 3 दैट विल बी इक्वल टू, देखिए अब ये तो 1 हो जाता है इसका पावर, और +3 का माइनस आयोटा हो जाएगा. माइनस आयोटा को देखिए हमने लिखा है, माइनस आयोटा को रेशनलाइज करके माइनस आयोटा नीचे है, आयोटा ऊपर और नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, जिससे कि डिनोमिनेटर में माइनस आयोटा स्क्वायर आ जाएगा. देखिए माइनस तो पहले से ही था और एक -1 आ गया, क्यों, आयोटा में आयोटा को मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया, -1 आ गया. सो -1 और माइनस का मल्टीप्लाई किया तो +1, दैट विल बी इक्वल टू आयोटा. सो दिस कैन बी रिटन एज 0 प्लस आयोटा इंटू 1. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4. 4 क्या करता है, देखिए 3 इंटू 7 ब्रैकेट के अंदर है, 7 प्लस आयोटा 7 प्लस आयोटा ब्रैकेट के बाहर है
इनसाइड द ब्रैकेट 7 प्लस आयोटा 7। अब देखिए यहाँ से हम 7 बाहर ले सकते हैं। अब 3 को देखिए यहाँ से 7 लिया बाहर तो हमारे को क्या मिला 3 प्लस आयोटा 3 या आयोटा 3 मिला। और यहाँ से 7 ले लिया तो हमें मिला क्या आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर। अब देखिए आयोटा स्क्वायर की जगह पर हमने क्या लिख दिया -1। और देखिए आयोटा और 3 आयोटा कुल मिलाकर कितना हो गया 4 आयोटा। और ये 3 को 3 रखा। अब 3 - 2 का मतलब क्या हो गया, सॉरी 3 - 1 दैट इज 2 प्लस आयोटा 4 और 7 बाहर है। 7 को अब मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर। 7 × 2 = 14 प्लस आयोटा 28। देखिए 7 × 4 = 28। सो 14 प्लस आयोटा 28 इस फॉर्म में हमें लिखना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 दैट इज 1 माइनस आयोटा माइनस इनसाइड द ब्रैकेट -1 प्लस आयोटा 6। अब देखिए हमने लिखा इसको 1 माइनस आयोटा और ये माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा और ये इधर माइनस हो जाएगा माइनस आयोटा 6। अब देखिए प्लस का ये है 1 और 1 तो 2 हो गया और माइनस का आयोटा है, माइनस का आयोटा 6 है तो कुल माइनस का आयोटा 7 हो गया। तो 2 माइनस आयोटा 7 दिस विल बी द आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 5। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 6 question number 6 that is in bracket 1/5 plus iota 2/5 bracket closed minus in the second bracket 4 plus iota 5/2। अब देखिए रियल पार्ट को हमने एक तरफ किया 1/5 माइनस 4। आयोटा हमने कॉमन ले लिया 2/5 माइनस 5/2। इसको सॉल्व किया 5 × 4 = 20, 20 - 1 that is -19/5 प्लस आयोटा इसको सॉल्व किया तो हमें क्या मिला 4 - 25/10 एलसीएम हो गया 10 -19/5 माइनस आयोटा 21/10। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिए 1/3 प्लस आयोटा 7/3 प्लस 4 प्लस आयोटा 1/3 ये कंप्लीट एक ब्रैकेट में है माइनस इनसाइड द ब्रैकेट -4/3 प्लस आयोटा। अब देखिए हम यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। पहले देखिए 1/3 4 रियल पार्ट जो है 1/3 प्लस 4 प्लस क्या है और 4/3 ये देखिए इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 4/3 आएगा। हमने रियल पार्ट को एक जगह इकट्ठा कर लिया है प्लस इमेजिनरी पार्ट को आयोटा बाहर ले लिया। अब 7/3 प्लस 1/3 माइनस 1 यहाँ से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा तो आयोटा। अब इसको हमने एक साथ प्लस कर लिया तो 17/3 प्लस आयोटा 5/3 और दिस विल बी योर आंसर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 दैट इज 1 माइनस आयोटा रेज़्ड टू पावर 4। अब हम a माइनस बी का रेज़्ड टू पावर 4 का फार्मूला याद होगा तो देखिए क्या है a रेज़्ड टू पावर 4 तो हमने क्या किया 1 रेज़्ड टू पावर 4 माइनस 4 × 1 का क्यूब इंटू आयोटा प्लस 6 1 का स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर माइनस 4 × 1 इंटू आयोटा क्यूब प्लस आयोटा रेज़्ड टू पावर 4। अब देखिए आयोटा रेज़्ड टू पावर 4 1 हो जाएगा। ये आयोटा रेज़्ड टू पावर 3 है दैट विल बी इक्वल टू -3 आयोटा
सॉरी -4 आयोटा हो जाएगा, और ये माइनस वाले से है, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। 6 इंटू आयोटा स्क्वायर लिखा हो, देखिए आयोटा स्क्वायर है, हमने इसको क्या कर दिया, आयोटा स्क्वायर की जगह पर -1, दैट इज -6। अब यहाँ पर देखिए 4 इंटू 1 इंटू आयोटा, हमने क्या लिखा यहाँ पर -4 आयोटा, माइनस एज इट इज, आयोटा एज 1 माइनस 1⁴ दैट इज 1। सो देखिए माइनस का 4 आयोटा है, इधर प्लस का 4 आयोटा है, माइनस एंड प्लस दोनों इक्वल है, कैंसिल हो जाएगा एक दूसरे को। सिंपल मैथमेटिक्स, 1 - 6 + 1, 1 + 1 2, और माइनस का 6 है तो इसलिए माइनस का 4 हो गया। अब दिस -4 कैन बी रिटन लाइक दिस, -4 प्लस आयोटा इंटू 0। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 9। 1/3 + 3 आयोटा रेज़्ड टू पावर 3। अब देखिए a + b होल रेज़्ड टू पावर 3 का फार्मूला लगेगा यहाँ पर। सो 1/3 रेज़्ड टू पावर 3 प्लस 3 इंटू फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, एक इसका पावर कम होता जाएगा, 1/3 इंटू स्क्वायर, इसका स्क्वायर के लिए इंटू थ्राइस आयोटा प्लस 3 इंटू 1/3 इंटू 3 आयोटा का होल स्क्वायर प्लस 3 आयोटा रेज़्ड टू पावर 3 हो जाएगा। अब इसका क्यूब करेंगे तो क्या मिलेगा हमारे को, 1/27। अब इसका देखिए, इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, 1/9। ये 1/9 इंटू 3 आयोटा है, तो 3 इंटू 3 9 हो जाएगा, नीचे 9 आ रहा है तो ये 9 कैंसिल हो जाएगा, केवल आयोटा बचेगा। अब यहाँ पर देखिए 3 इंटू 1/3 इंटू 3 आयोटा का होल स्क्वायर है, ये 3 से कैंसिल हो जाएगा। जब इसको स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 9 आयोटा स्क्वायर। 9 आयोटा स्क्वायर के जगह पर हम क्या लिखेंगे, -9, क्यों, आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है। अब लास्ट वाले को देखिए, प्लस 3 आयोटा रेज़्ड टू पावर 3 है, सो 3 का क्यूब करेंगे तो 27 आएगा, और आयोटा का क्यूब करेंगे तो माइनस आयोटा आएगा। आयोटा रेज़्ड टू पावर 3 इज इक्वल टू माइनस आयोटा, तो दैट इज वाई इट हैज़ बिकम -27 आयोटा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए 1/27 -9 को सॉल्व करेंगे तो -242/27 आएगा, और ये माइनस आयोटा प्लस आयोटा था, इधर -27 आयोटा था, तो माइनस का 26 आयोटा आ गया। एंड दिस इज योर आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 9। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 10। -2 - 1/3 आयोटा होल रेज़्ड टू पावर 3। अब देखिए ये इसका जो है क्यूब किया गया है, क्यूब वाला फार्मूला है। सो -2 का क्यूब किया, देखिए उस फॉर्म में लिख दिया, +3 इंटू -2 का स्क्वायर इंटू -1/3 आयोटा प्लस 3 इंटू -2 इंटू -1/3 आयोटा का पावर 2 कर दिया, प्लस -1/3 आयोटा रेज़्ड टू पावर 3। अब देखिए यहाँ पर पावर कितना है, 3 है, टर्म्स कितने मिलेंगे, 4। देखिए 1 2 3 4। अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए तो आपको मिलेगा -8। 2 का क्यूब किया, लेकिन माइनस होने के कारण -8, -4 आयोटा प्लस -6 इंटू आयोटा स्क्वायर बाई 9। तो आयोटा स्क्वायर बाई 9 क्या हो जाता है, माइनस, देखिए माइनस इंटू माइनस आयोटा बाई 27। अब देखिए -8 एज इट इज, -4 आयोटा
इसको सॉल्व किया 6/9 को 2/3 हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, वो इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा। अभी प्लस, ये देखिए माइनस माइनस प्लस हुआ, तो आयोटा बाई, देखिए यहाँ से हमने लिख दिया 1/27, इस माइनस का आयोटा इंटू आयोटा है, देखिए इधर -8 प्लस 2/3 प्लस आयोटा बाहर ले लिया -4 प्लस 1/27। नेक्स्ट पार्ट में देखिए इधर, इसको सॉल्व किया, 8 3 जा 24, 24 में से 2 माइनस कर दिया तो माइनस का 22/3 आ गया, माइनस आयोटा 107/27, 107/27, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, -22/3 माइनस आयोटा 107/27। Find the multiplicative inverse of each of the following complex numbers given in the exercises 11 to 13। अब हमारे को मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है। देखिए मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ जेड, एक जेड मान लीजिए कम्प्लेक्स नंबर है, तो उसका क्या होगा, तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1/z। तो 1/z निकालने के लिए मैं किया हूँ, देखिए 4 माइनस 3 आयोटा इज इक्वल टू जेड। सो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1/z, 1/z की जगह पर मैंने क्या लिखा, देखिए 1/4 माइनस 3 आयोटा, इसको रेशनलाइज कर दिया है, 4 + 3 आयोटा ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई किया, देखिए न्यूमरेटर पार्ट में भी डिनोमिनेटर पार्ट में। इसका जो रिजल्ट मिलेगा तो देखिए 4 + 3 आयोटा एज इट इज, डिनोमिनेटर में क्या मिला हमारे को, 16 - 9 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर के इज इक्वल टू क्या होता है, -1, तो माइनस में मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा। सो 16 + 9 दैट इज इक्वल टू 25। न्यूमरेटर में क्या है, 4 + 3 आयोटा, देखिए 4 + 3 आयोटा बाई 25, दैट विल बी इक्वल टू 4/25 प्लस आयोटा into 3/25. This will be the answer of question number 11. Now come to the question number 12.